जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का लोक अनुपम। श्रेष्ठ सुंदर दिव्य दिल्ली विश्वविद्यालय विहंगम। जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का लोक अनुपम। सकल वसुधा निज कुटुंब की भावना, संस्कृति सनातन, आधुनिक शिक्षा पुरातन, ज्ञान धाराओं का संगम। देश की स्वाधीनता हित भूमिका शतकोटि वंदन। निष्ठा धृति सत्यम के मंगल, दिव्य भावों का समागम। जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम। भव्य महाविद्यालयों के परिसरों से चिर सुशोभित, श्रेष्ठ गुरुजन कर रहे नित्य छात्र और छात्राएं दीक्षित। सदचरित्राचार पावन साधना संकल्प संयम। नवल वैश्विक चेतना नव क्रांति संस्कारों का उद्गम। जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का लोक अनुपम। श्रेष्ठ सुंदर दिव्य दिल्ली विश्वविद्यालय विहंगम। जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का लोक अनुपम। ज्ञान का आलोक अनुपम। ज्ञान का लोक अनुपम। Today, we are here for the 2-day orientation cum training program for our newly recruited para teaching staff. पैरा का अर्थ है साथ में, यानी यह स्टाफ शिक्षकों के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि टीचिंग लर्निंग को बेहतर बनाया जा सके और शैक्षिक प्रक्रिया को सक्रिय रूप से समर्थन किया जा सके। पैरा टीचिंग स्टाफ डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम की सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और शिक्षकों और छात्रों के बीच एक आवश्यक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए आज यह प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि वे इन आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें। To give further details about the training and orientation, I now invite Dr. O.P. Sharma, Deputy Registrar, School of Open Learning, to brief us about the schedule of this orientation and training program. Our respected chief guest, Dr. Vikas Gupta ji, Registrar, University of Delhi, Professor Payal Mago ma'am, Director, Campus Open Learning, Professor Ajay Jaiswal sir, Principal, School of Open Learning, Professor Prajosh Rai sir, Joint Director, Campus Open Learning, Professor Pramod Tiwari ji, Joint Director, Campus Open Learning, Professor U.S. Pandey ji, Deputy Director, West Regional Center, Professor Suman Verma ji, basically he is reaching now, and sir. Professor Suman Kumar Verma ji, Deputy Director, North Regional Center, and my dear colleagues. First of all, we are thankful to all the dignitaries sitting on the dais and in front of the dais, especially our Registrar and Director ma'am for sparing their valuable time to grace this inaugural session of 2-day orientation cum training program of para teaching staff of School of Open Learning, Campus of Open Learning. For the last 1.5 years, with great efforts of our Director ma'am, Principal sir, and blessing of Honorable Vice Chancellor sir and Registrar sir, we are able to appoint sufficient number of teaching and para-teaching staff in SOL. Still, the process of appointments is underway. At present, SOL has 62 permanent faculty, 203 permanent para-teaching staff, 129 ad hoc contractual consultant daily wager staff. Out of them, around 117 participants of Group A, Group B, and Group C are attending this program, wherein about 48 newly appointed staff and 69 are existing assistant registrar, section officer, and senior assistants of SOL. The main objective of this orientation cum training program is to share threadbare functioning of the institution as well as to get aware about latest rules and regulation related to establishment,
administration, finance, and ICT, etc. The expert knowledge about the same will be shared by our assistant registrar and controlling officers of various sections of SOL, as well as best academic administrators of the University of Delhi. I am glad to say that Shri Girish Ranjan, Finance Officer, University of Delhi, Mrs. Meenakshi Sahai, Joint Registrar, University of Delhi, Dr. Rohan Rai, Joint Registrar, University of Delhi, and Shri Jay Chanda, Joint Registrar, University of Delhi, are our esteemed resource person. During these 2 days, the topic to be taken by them during the session are available in your kit. Lastly, I would like to say that after a very long time, such type of orientation cum training program is being organized by our authorities for our para-teaching staff of SOL. So I request all the participants, don't miss this opportunity, participate with full dedication and enthusiasm, and clear your doubts during the question and answer session without any hesitations. All the best. Thank you. Thank you, sir, for outlining the program schedule so meticulously. Your guidance is certainly helping everyone to make the most of these days of learning and growth. Moving further, I now like to invite Professor Ajay Jaiswal, Principal, School of Open Learning, to deliver the welcome address. Our Honorable Chief Guest, Dr. Vikas Gupta, Registrar, University of Delhi. Our Director, ma'am, Professor Payal Magu. Joint Directors, Professor Prajesh Roy, Professor Pramod Tiwari. Deputy Directors, Professor U.S. Pandey, Professor Verma, Suman Verma. Deputy Registrar, O.P. Sharma ji. Academic Coordinator, Dikshant Avasthi, and all dear colleagues. First of all, I welcome you all in this inaugural ceremony of the training program that has been organized for the para-teaching staff. And इस program में सिर्फ नए ही recruitment वाले साथी नहीं हैं, बल्कि वो लोग भी हैं जो हमारे साथ पहले से काफी काम कर रहे हैं. और आपको एक चीज बताना चाहता हूं, हम लोगों ने 69 पोस्ट एडवर्टाइज की थी, एंड these recruitments are taking place after 25 years or more than that. So this we are able to achieve with the efforts of our director ma'am and the supports of university like Vice Chancellor sir and the registrar sir. हमने फिर 69 पोस्ट एडवर्टाइज की थी, जिसमें से 59 का हम रिक्रूटमेंट कर चुके हैं और उसमें से 48 लोग ज्वाइन कर चुके हैं हमें, और बाकी पोस्ट पे भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑन है. तो अब हमें स्टाफ की कमी नहीं होगी, लेकिन स्टाफ जब हमारे पास पूरा है तो हमें ये बहाना भी नहीं होना चाहिए कि हमारा काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि स्टाफ की कमी थी. तो आप सबसे ये एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो नए रिक्रूट किए हुए स्टाफ हों या पुराने स्टाफ हों, आप सबको मिलके SOL के स्टूडेंट्स के लिए काम करना है, उनकी प्रॉब्लम्स को हमें कम से कम करना है. यही हमारा एम होना चाहिए. और इस ट्रेनिंग का उद्देश्य भी यही है कि आप सबको स्पेसिफिकली नयों के लिए कि वो इस सिस्टम से वाकिफ हो जाएं, इस सिस्टम से नो हाउ कर ले, जिससे उनको अपने जो भी उनको पोस्ट असाइन होती है, अभी कुछ लोगों को पोस्ट असाइन हुई है पोस्टिंग, कुछ लोगों को नहीं हुई है, ठीक है. तो जो लोग जो भी पोस्ट हम उनको असाइन करें वो उस जगह बहुत अच्छे से अपने काम को कर सके, यही आप सबसे एक्सपेक्टेशन है. पुराने लोगों से भी एक्सपेक्टेशन है, शायद वो भी किसी सेक्शन में काम करते रहे होंगे तो दूसरे सेक्शन की उन्हें जानकारी कम होती है. तो यहाँ पे आपको काफी सारे सेक्शंस ऑलमोस्ट हम कवर करेंगे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, और आपको उन सब सेक्शंस के जो भी काम है उससे आपको जो है अवगत कराएंगे. और आपसे यही एक्सपेक्टेशन है, आप खुल के इसमें भाग लें, क्वेश्चंस पूछने में हेजिटेशन ना करें, क्योंकि क्वेश्चंस पूछेंगे, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे तो लर्निंग बेटर होगी. इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सबसे एक्सपेक्टेशन यही है कि आप सब अच्छे से काम करें, SOL के हित में काम करें, और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir, for setting the vision of this training program. Now we move on to a very special moment of our program to felicitate our esteemed chief guest, Dr. Vikas Gupta, sir. Sir has held pivotal roles across various apex bodies. He has served as the founder, senior director of the National Testing Agency, joint secretary at the UGC, and director of the Distance Education Council. Additionally, he has contributed as Joint Secretary and Regional Officer of CBSE for Northeast Region and as an Assistant Director at AICTE. He has been an esteemed member of several high-level committees for various universities. I request Professor Payal Magu, Director, Campus of Open Learning, to kindly
felicitate sir with a token of gratitude and respect. We welcome you again, sir. Now, it is my privilege to invite Professor Payal Mago, Director, Campus of Open Learning, to deliver the keynote address. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर विकास गुप्ता, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि विकास जी कभी एसओएल का भी पार्ट रहे हैं, और आज जिस तरह से एसओएल ग्रो कर रहा है उसकी नींव में बहुत सारे पत्थर लगाने वाले विकास जी आज हमारे बीच में हैं। और जिस समय विकास जी थे यहाँ पे, तो सिर्फ नींव में पत्थर लगाने का काम नहीं किया, पर जब रजिस्ट्रार बने तो रजिस्ट्रार बनने के बाद जिस तरह की एसओएल की बिल्डिंग खड़ी होनी चाहिए, उसके लिए पिछले 3 साल से आपका बहुत अधिक सहयोग जो हमें मिला है, जिसकी वजह से हम न्यू कोर्सेज, जो हमारी बिल्डिंग का रेनोवेशन हो रहा है, और आज जो रिक्रूटमेंट हुई है टीचिंग और नॉन टीचिंग की, उसमें डॉक्टर विकास गुप्ता का बहुत बड़ा रोल है। साइलेंटली और पीछे से जितना इन्होंने सपोर्ट किया है, उसकी वजह से आज मैं देख पा रही हूं कि 25 साल के बाद यहाँ पे नई रिक्रूटमेंट हुई है। हमारे बीच में एसओएल के प्रिंसिपल प्रोफेसर अजय जायसवाल, जॉइंट डायरेक्टर्स डॉक्टर प्रोजेश रॉय एंड डॉक्टर प्रमोद तिवारी, हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स सुमन कुमार वर्मा जी एंड प्रोफेसर यूएस पांडे, हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार ओपी शर्मा जी, ओएलडीसी में एकेडमिक कोऑर्डिनेटर दीक्षांत अवस्थी जी, और बहुत सारे यहाँ पे हमारे जो पुराना स्टाफ है एआर एसओ इस लेवल का, और उसके साथ साथ जो अभी नए रिक्रूट्स हुए हैं, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। अभी नुपुर जब बात कर रही थी तो उन्होंने पैरा टीचिंग की बात की। इस बार 15 अगस्त पे मुझे लगा कि बार बार नॉन टीचिंग शब्द मुंह में आ रहा है, और जब मेरे कॉलेज राजगुरु में भी नॉन टीचिंग शब्द मुंह में आता था तो मुझे लगता था नॉन इज अ नेगेटिव वर्ड। तो उसको हमने अपने बोलने की भाषा में पैरा टीचिंग किया है, और पैरा टीचिंग सच में जो टीचिंग है या एडमिनिस्ट्रेशन है, और जिस तरह से स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग का काम चलता है, उसकी बैकबोन के रूप में उसने हमेशा से काम किया है। और आज मुझे लगता है कि जो सब नए लोग आए हैं, उनको किस प्रकार से इसकी बैकबोन बनना है, वो भी आज हम यहाँ पर सीखेंगे। एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी, क्योंकि बहुत लंबा प्रोग्राम जाने वाला है, और हम डॉक्टर विकास गुप्ता से बहुत सारी चीजें सुननी और समझनी भी चाहेंगे। एक जो आपको प्रण लेना है, अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन्ड रखते हैं, पहले दिन से ही डिसिप्लिन्ड रखते हैं, तो आप काम भी सीखेंगे, अच्छे से डिलीवरी भी करेंगे, और आप एसओएल के लिए इंडिस्पेंसिबल भी हो जाएंगे। आपको कोई और आपकी जगह से हटा भी नहीं सकता। और इसके लिए सभी सेक्शंस का काम सीखना, अपने आप को डिसिप्लिन्ड रखना में समय से आना भी शामिल है। जाने का यहाँ समय थोड़ा कम होता है, वो कोई डिफाइंड नहीं होता है,
लेकिन आने का समय तय है। सैटरडे संडेज भी कई बार हमको काम करना पड़ता है, और जब हम सैटरडे संडे स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं तो एक अलग तरह की सेटिस्फैक्शन भी हमारे अंदर रहती है। और पूरा दिन जब हम अपनी सीट पे बैठते हैं, तरह तरह के काम करते हैं, तो एक जो नई ऊर्जा है वो ना केवल संस्थान में बल्कि अपने भीतर भी पैदा होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः आपका हृदय से स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि जो नए रिक्रूटीज हैं अगले 30-32 साल, जितने साल की भी उनकी नौकरी है, वो बहुत अच्छे से यहाँ पे काम करें और एसओएल नई ऊंचाइयों को छुए, ऐसी ही भगवान से भी प्रार्थना है। नमस्ते। Thank you, ma'am, for your insightful address. Your words will definitely prove a transformative initiative, and not just academic, but also administrative domain. Without further ado, it is now time to hear from our distinguished chief guest of the day, Dr. Vikas Gupta. Sir, we request you to please take the dais. Namaskar, good morning. Most respected Professor Payal Ma'am, Director Campus of Open Learning, Professor Ajay Jaiswal, Principal School of Open Learning, Professor Prajas Roy, Professor Pramod Tiwari, Professor U.S. Pandey, Professor Suman Kumar Verma, my friend O.P. Sharma, Dr. Dikshant Avasthi, and Dr. Nupur Gosain, and my dear friends from SOL, जिनके साथ मैंने काम भी करा, और नए लोग जो इस फैमिली में जुड़े, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। मैम की आपने बातें सुनी, इतने इनिशिएटिव्स मैम ने लिए, लेकिन चुपके से उसका क्रेडिट मेरी तरफ सरकार दी। देखिए, यूनिवर्सिटी हर चीज को सपोर्ट करने को तैयार है, बट इनिशिएटिव्स तो आपको ही लेंगे। अभी पिछले हफ्ते में मैम ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया फॉर द टीचर्स ऑफ एसओएल की सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स कैसे बनाना है। उस दिन भी मैम ने जब मुझे बुलाया तो मुझे याद है कि जब एसओएल में मैं आया और एसओएल के बाद डायरेक्टर डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल में मैं डायरेक्टर और मेंबर सेक्रेटरी गया, तो वहां पे जो मैंने सबसे पहला अप्रूवल निकाला डेक का, वो एसओएल का ही निकाला। उस अप्रूवल में ये कंडीशन थी कि एसओएल को जो स्टडी मटेरियल है वो इंप्रूव करना है। अनफॉर्चुनेटली 13 साल तक वो इंप्रूवमेंट की स्टेज पे नहीं आया, क्योंकि जब तक हम बताएंगे नहीं कि सेल्फ लर्निंग मटेरियल करना क्या है, तो वो जो हमारे पुरानी स्थिति चल रही थी कॉरेस्पॉन्डेंस वाली, हम उसी को लेके स्टडी मटेरियल चलाते थे। हम कट पेस्ट पे बहुत माहिर थे, इधर से उठाया उधर जोड़ा, उधर से उठाया उधर जोड़ा, और एक बुकलेट बना के बच्चों को दे दी, बच्चे भी खुश हैं और हमारा भी काम चला गया। लेकिन अब वक्त बदल गया, स्टडी मटेरियल आपका टेस्ट पे है। मैम ने ये भी इनिशिएटिव मैम ने लिया कि स्टडी मटेरियल को टेस्ट पे डाला और एकेडमिक काउंसिल की अप्रूवल मांगी। काफी चीजें एकेडमिक काउंसिल में हुई जो मैम जानती हैं और आप में से कुछ लोग भी जानते हैं। एक बार हुई, 2 बार हुई, फिर तीसरी बार आया। देखो, जो लोग नेगेटिव हैं सिस्टम के प्रति, वो नेगेटिव काम करते रहेंगे, बट मैम की पॉजिटिविटी क्या है कि मैम सिस्टम में सुधार लाना चाहती हैं, और शी अल्टीमेटली रिक्वेस्टेड ऑनरेबल वाइस चांसलर कि she want to place again all these SLM before the academic council and seek the approval, and we got those approvals. लेकिन कुछ कमियां थी, मैम ने उसको एज ए चैलेंज लिया, and that is why she arranged a training program for the teachers. I congratulate you, ma'am, for all your initiatives you have taken for SOL. 26 साल बाद 8 नए कोर्सेज SOL में शुरू करना अपने आप में बहुत खास बात है, क्योंकि जो दिल्ली विश्वविद्यालय के सिस्टम को जानते हैं वो डिपार्टमेंट की रुख को भी पहचानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के लोगों में, जैसे वाइस चांसलर साहब कहते हैं ना, हम किसी को कुछ देना ही नहीं चाहते, तो डिपार्टमेंट के लोग भी आपको कोई प्रोग्राम देना नहीं चाहते थे। ये मैडम का अपना इनिशिएटिव था
मैडम का दृढ़ निश्चय था कि मुझे ये चीजें स्टार्ट करनी है, नहीं तो कौन सोच सकता था एमबीए का जो प्रोग्राम है वो एसएल में चलेगा, कौन सोच सकता था इकोनॉमिक्स ऑनर्स का प्रोग्राम है वो एसएल में चलेगा। तो ये इनिशिएटिव धीरे धीरे मैडम ने लिए। मैं मैम को इसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि ये एफर्ट्स मैम ने लिए, लेकिन मैम ने जो एफर्ट्स लिए वो आप सबके दम पे लिए। मैम को ये लगता है कि मेरी सपोर्ट मेरे टीचर्स और मेरा स्टाफ है, इसीलिए आज फिर 15 साल बाद एसएल ने ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा। यूनिवर्सिटी ने अपनी पॉलिसी बनाई है, हम लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम करते रहते हैं। आप में से कई चेहरे मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी देखे हैं। अब उसका उद्देश्य क्या है? हम कहेंगे आपको कुछ चीजें सिखानी है। भाई आप काफी कुछ सीखे हुए हो, बच्चे भी नहीं हो, आपका कार्य क्षेत्र आप जानते हैं, आप सीखते हैं, समझते हैं। तो मैं बड़ा असमंजस में था कि मैं आप लोगों से क्या बात करूंगा, किस तरीके से बात करूं। तो एक छोटी सी स्टोरी मैंने सुनी। एक दादाजी अपने बच्चे के पोते के साथ चलते हैं और उसको महाभारत के श्लोक बताते जाते हैं। बच्चा सुनता जाता है। तो वो दादाजी से बोलता है, दादाजी मैं तो भूल जाता हूँ। दादाजी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, अगले दिन फिर लेकर जाते हैं, फिर उसको श्लोक सुनाते हैं। वो कहता है दादाजी मैं तो भूल जाता हूँ। तो ये स्थिति चलती रही, परिस्थिति ऐसी आती रही। पोता हर बार दादा से बोलता रहा, लेकिन दादा अपना काम करता रहा। एक दिन दादा ने उसको बोला कि ऐसा कर बेटा, वो कमरे में एक टोकरी पड़ी है जिसमें हम कोयला लेके आते हैं, उस टोकरी पर गया। पोता भाग के गया, टोकरी ले आया। दादा और पोता दोनों नदी के किनारे पे गए। चलते चलते दादा ने फिर उसको संस्कृत का एक श्लोक सुना दिया। तो वो कह रहा दादा देखो मैं फिर भूल गया। कह रहे कोई बात नहीं, अब ऐसा करो, ये पानी की टोकरी लेके जाओ, इसको पानी भर के लाओ। तो लड़का गया, पानी भर के धीरे धीरे लाया। टोकरी थी तो पानी निकल गया सारा। कह रहा दादा देखो पानी तो निकल गया। कह रहा कोई बात नहीं बेटा, तेजी से जाओ, भाग के आना तुम। वो फिर तेजी से गया और भाग के आया तो पानी फिर निकल गया। तीसरी बार दादा ने कहा बेटा और तेज जाओ और इसको लेके आओ। लड़का फिर गया, नदी से टोकरी भरी और भागा, लेकिन पानी नहीं टिका टोकरी में। तो बोले दादा देखो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि टोकरी में पानी रहेगा नहीं, आप मेरी बात मानते नहीं। तो दादा बोला बेटा इस टोकरी के अंदर देखो, इस टोकरी में हम कोयला लाते थे, लेकिन पानी के तेज बहाव से पानी नहीं टिका इसके अंदर, लेकिन कोयला साफ हो गया। तो शायद यही उद्देश्य इस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का है आप लोगों के साथ, कि आप में से कितने लोग क्या चीज ग्रहण करेंगे क्या नहीं करेंगे वो आपके ऊपर है। हमारी कोशिशें जारी रहेंगी, हम जितना कुछ सिखा सकते हैं सिखाने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर जितनी चीजें बैठेंगी वो आपका अधिकार क्षेत्र है। हमारी शक्ति जितनी है हम उतना काम करते रहेंगे। तो ये एक ट्रेनिंग का उद्देश्य है जो आप लोगों को सीखना है। एक छोटी सी कहानी और बताऊंगा मैं, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है कि जीवन में सब कुछ जीता जा सकता है संस्कार से, और जीता हुआ भी हारा जा सकता है अहंकार से। हम लोग कई अपने कार्य क्षेत्र में बहुत निपुण हैं, और हम लोगों में जब कुछ चीज आ जाती है तो हम घमंड में, अपने अहंकार में अपने आप को बहुत समझते हैं। इसीलिए ये जो जीवन का सत्य है, किसी ने बताया है कि सब कुछ जीता जा सकता है संस्कार से, और हार भी जा सकते हो अहंकार से। इसलिए भी एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगा। एक यंग लड़का था, वो तीरंदाजी करता था, लगातार प्रैक्टिस करता था तीरंदाजी पे। खूब अच्छी तीरंदाजी उसने सीखी, और इतनी अच्छी तीरंदाजी सीखी कि जब वो कंपटीशन में जाता वो जीतता। एक कंपटीशन जीता, दूसरा जीता, तीसरा जीता, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांवों में गया, वहां भी तीरंदाजी करके वो जीता। जैसे जैसे वो तीरंदाजी जीतता था लोग उसकी तारीफ करते थे कि कितना अच्छा लड़का है कि तीरंदाजी सीख गया है। और धीरे धीरे इतने उसने कंपटीशन जीते कि वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो गया, कि सबसे बढ़िया तीरंदाज अगर कोई है तो वो लड़का है। उस लड़के में इस जीत का अहंकार
आना शुरू हुआ। एक दिन वो एक गांव में गया। जब उस गांव में वो गया तो किसी ने उससे बोला कि भाई देखो, मैं तो तुम्हें सर्वश्रेष्ठ तब मानूंगा अगर उस कोने के घर में जो व्यक्ति है उसको तुम तीरंदाजी में हरा दोगे। लड़के में अहंकार था, कह रहा ऐसी कौन सी बड़ी बात है, मैंने सबको हरा दिया, धूल चटा दी, उसकी क्या बात है, उसको भी हरा दूंगा। वो उसके घर पहुंचा, उसको बुलाया, बुजुर्ग व्यक्ति बाहर आया, उसने बोला उसने कहा जी मैं आपसे तीरंदाजी का मुकाबला करना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने कहा जी मेरे को तो तीरंदाजी छोड़े हुए कई साल हो गए। कह रहा नहीं जी, आपको मेरे से मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेरे से मुकाबला नहीं करोगे तो आपके गांव के लोग मुझे सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज नहीं मानेंगे। बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराया और उसको बोला अच्छा ऐसी बात है तो चलो हम चलते हैं। दोनों एक जगह पे गए। लड़के ने एक तीर, अपने तीर से एक निशाना लगाया, दूर उसका निशाना उस तीर पे जा रहा है, निशाने पे उसका तीर लगा। उस लड़के ने दूसरा तीर निकाला, उसी निशाने को दोबारा बनाया और तीर पहले वाले तीर को भेदता हुआ एक्यूरेट उसी पॉइंट पे लगा। तो उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि अब आप ऐसा कर सकते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा मैं कोशिश करता हूं। बुजुर्ग व्यक्ति ने इकट्ठे 2 तीर निकाले, कमान पे चढ़ाए और छोड़े। एक तीर एक्यूरेट पॉइंट पे लगा, दूसरा तीर उसके पीछे उसी एक्यूरेट पॉइंट पे तीर तो भेजता हुआ चला गया। तो बुजुर्ग व्यक्ति ने कम टाइम में अपना श्रेय प्राप्त किया। तो लड़के को लगा कि मैं तो हार गया, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति बोला कि देखो चलो कोई बात नहीं, अभी तो ये तो एक थी, अब जैसा तुमने कहा वो मैंने किया, अब मैं जो कहता हूं वो तुम करो। वो उनको लेके आगे चले, गांव से बाहर की तरफ चले। अब गांव से जब बाहर निकले तो एक गहरी खाई थी जहां पे झील थी। उस झील के दोनों तरफ पहाड़ थे और उधर बीच में से एक पतली पगडंडी का रास्ता चल रहा था, झूले वाला, जो हिलता था। तो लड़का बोला भी हम तीरंदाजी के लिए आए हैं, घूमने फिरने नहीं आए। कह रहा कोई बात नहीं हम चलते हैं। वो ले गया उसको। अब उस पुल पे जब चलते हैं, दोनों पहाड़ों के बीच में जो पुल बंधा हुआ है वो हिल रहा है, हवा भी है, नीचे गहरी झील है, तो डर भी लगता है। बुजुर्ग व्यक्ति उसको बिल्कुल बीच में ले गया और उसने दोनों पहाड़ों के बीच में एक पेड़ देखा, उस पर एक पॉइंट लगाया और उस पर निशान लगाया। अब उसने उस लड़के को बोला कि आप ये निशाना लगा। अब लड़का जब उस पे पुल पे खड़ा था, पुल हिल रहा था, हवा चल रही थी, तो वो वैसे ही डर रहा था। उसने तीर निकाला, चलाया और तीर वहां तक बिल्कुल नहीं पहुंचा। लड़का ने माना कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं और उनके पैरों को छुआ। उसने बोला जी आप सर्वश्रेष्ठ हैं, मैं अहंकार आ गया था मेरे में, तो मैं मानता हूं कि मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आगे फिर कोशिश करूंगा। लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति उससे बोला कि देखो बेटा ऐसी बात नहीं है, तुमने तीर कमानी के क्षेत्र में तो तुमने वो मुकाम हासिल कर लिया जो तुम जानते थे या तुम पाना चाहते थे। तुम बहुत अच्छे तीरंदाज हो, लेकिन तुम अपने मन पे काबू नहीं कर पाए। आपका मन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका मन हर परिस्थिति को समझने की शक्ति देता है। आपका मन आपको बहुत चीजों के लिए कंट्रोल करता है। आपका मन आपको सशक्त बनाता है। उसने बोला कि आप जब तीरंदाजी कर रहे थे तो आपके मन में बड़े डर थे, उस कारण से आप हिले और आपका तीर उस निशाने पे नहीं पहुंचा। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बोला कि अगर आपको जिंदगी में और अच्छा अचीव करना है तो अपने मन को कंट्रोल करना है। मन आपका आपके साथ है, सशक्त है, तो आप हर चीज जीत सकते हैं। अगर मन
मन आपका कमजोर हुआ तो वो एक परिस्थिति को विकट बना देगा। अपने मन को अपना मित्र बनाना सीखो। अगर आपका मन आपके साथ नहीं है तो वो एक परिस्थिति समस्या बन जाती है। अगर मन आपका स्थिर है तो वो उस परिस्थिति को चुनौती के रूप में बदल देता है। लेकिन अगर मन आपका सशक्त है तो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है टू अचीव एवरीथिंग। तो आप लोगों के साथ ये जरूरी है चीजें। आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, यहां बैठा हुआ व्यक्ति या जो आएगा अगला व्यक्ति वो नहीं बता सकता। आपको खुद को फैसला करना है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आप लोगों की इज्जत करेंगे, कैसे लोगों से आप बात करेंगे, आप कितना सीखते हैं और दूसरों को कितना सिखा सकते हैं, ये भी आप पे निर्भर है। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें मैम ने, मैं मैम को और एसएल की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने एक नई टर्म और निकाली, पैरा स्टाफ, जो कि मैं थोड़ा सा फर्क, मैं हमेशा जितना नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको मैं एजुकेशन प्लानर और एडमिनिस्ट्रेटर्स बना के चलता हूं, क्योंकि आप लोग साथ में हैं तो हम प्लानिंग कर पाते हैं, आप लोग साथ में हैं तो हम एडमिनिस्ट्रेशन चला पाते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा से जितने नॉन टीचिंग के साथी मेरे होते हैं मैं उनको हमेशा एजुकेशन प्लानर और एडमिनिस्ट्रेटर मान के चलता हूं कि आप लोगों की वजह से ही हमारा सिस्टम अच्छे से चलता है। माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। 2 दिन का ये मौका है, आप सीखिएगा। 2 दिन का ये मौका है, आप निर्भीक होकर अपने प्रश्न पूछिएगा। मत सोचिएगा कि आपके आसपास के बैठे लोग आपके ऊपर हंसेंगे, क्योंकि जो हंसता है वो वीक कैरेक्टर है। अगर आपके ऊपर कोई हंस रहा है उससे बड़ा कमजोर व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जो आपकी भावनाओं को, आपके मन को नहीं समझ पाया वो बहुत ही कमजोर व्यक्ति है। आप मत डरना, आप अपना कार्य करना, अपनी चीजों को पूछना, काम करोगे गलती हो सकती है, काम ही नहीं करोगे तो गलती कहां से होगी। तो काम करो, सीखो, आगे बढ़ो। माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू, नमस्कार। Thank you, sir, for your thought-provoking words and these beautiful anecdotes that you shared for our encouragement. Your valuable insights and words of encouragement will surely inspire us all to be motivated and lead this organization to greater success. Now, to conclude the inaugural session, I invite Professor Prajesh Roy to deliver the vote of thanks. Our Honorable Chief Guest, Dr. Bikash Gupta, Registrar, University of Delhi, our dynamic Director, Professor Payal Mago, Professor Ajay Jaishwalji, Principal, Professor Pramod Tiwari, our Professor Suman Bharmaji, DD, Professor U.S. Pandey, O.P. Sharmaji, and Dikshant Avastiji, and Dr. Nupur Kushai, and dear colleagues, very good morning. There is sir has told properly that you are connected with the Delhi University, and Delhi University always think about SOM. एक छोटी सी याद आ गया उस बैठे बैठे। एक दफा महादेव ने हनुमान जी को पूछा कि आप हो कौन? तो कहते कि मैं पवन पुत्र हूं। बोले मैं आपके पिता की नाम नहीं पूछा। बोले मैं अंजनी पुत्र हूं। बोले कि आपकी माता की नाम नहीं पूछा। बोले क्या पूछ रहे हैं? बोले आप हो कौन? बोले आप मेरे ही अंश हो, आपकी अस्तित्व तो मेरे से। तो हम सब जो जहां यहां बैठे हुए हैं, हमारा अस्तित्व जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। तो हमेशा याद रखना है, हमारा हर एक एक्ट, चिंतन जो भी है वो हमारे यूनिवर्सिटी को कनेक्ट करते हैं। और उस दिन 15 अगस्त को आवर ऑनरेबल वीसी सर ने बहुत अच्छी बात कही कि बुराई बड़े स्ट्रांग होते हैं, नेगेटिव चीज बड़े स्ट्रांग होते हैं, उनकी ताकत ज्यादा होती है, जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। अंत जो भी है, बुरा हो जो है,
बट इमीडिएटली अट्रैक्ट बहुत जल्दी करते हैं। अच्छाई से ज्यादा स्ट्रेंथ है उनके अंदर, अच्छाई तो धीरे धीरे चलते हैं, अंत में आके अच्छाई बहुत अच्छी हो जाते हैं, वो अलग बात है। इस वजह से इनिशियल स्टेज में कभी भी कोई बुरा चीज हो रहा है तो हमें इमीडिएटली दूर हो जाना, क्योंकि वो जल्दी पकाते। सो ये छोटी छोटी बातें आपकी मन की है और मन को आपको कंट्रोल करना है, बहुत अच्छी बात कही है। और ये 2 दिन शायद बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको एक नया विंडोज मिलेंगे, थॉट प्रोवोकिंग होंगे, थॉट प्रोसेस डिफरेंट होंगे। इस वजह से ये 2 दिन के लिए आप सबको मेरे शुभकामनाएं हैं। और अंत में सर को सिंसियर थैंक्स टू आवर ऑनरेबल चीफ गेस्ट। सर को मैंने अभी पूछा ब्रेकफास्ट टेबल में कि सर 3 दिन बाद बहुत आज काम होंगे, तो सर ने एक चीज कही कि ये प्रोजेक्ट में सैटरडे भी आया था, शाम को गए, और संडे में नहीं आया, कल भी आए थे, शाम को गए। लुक एट द कमिटमेंट ऑफ दैट पर्सन। तो hats off to you, sir. You are always an inspiration for the ASOM, and we learn a lot from you. Our honorable director, Professor Payal Magu madam, मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, अब ये 2-3 दिन छुट्टी था तो मैं भी फोन एक तरफ रख के, परसों मैम का कोई एक मैसेज आया था रात 11 बजे कि प्रोजेक्ट ये काम तुमने शुरू किया। तो मैंने मोबाइल देखा कि मोबाइल व्हाट्सएप देखूंगा तो सबको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, देखूंगा ही नहीं, तो अवे फ्रॉम मोबाइल। तो कल रात को देखा 11 बजे 10 बजे कि मैम की एक टेक्स्ट आया हुआ है, ये काम किया नहीं। तो मैंने डिनर के बाद बैठ गया, रात 2:30 बजे तक वो काम किया, फिर 5 बजे उठ के यहाँ पे आया। हम भूल जाते हैं, मैम नहीं भूलते। इस मेमोरी इज स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी मैं कहता हूं। हम जहां सोचना बंद कर देते हैं, मैम उससे बहुत आगे। और उनकी इतनी कमिटमेंट है, इतनी क्रिएटिविटी है, क्योंकि हम तो बहुत करीब रहते हैं, तो हमें पता है हर एक चीज में, हर एक व्यक्ति के लिए उनकी चिंतन, हर एक व्यक्ति के लिए, कोई उनकी चिंतन से बाहर नहीं है। ये आप पॉजिटिवली अपने मन में रखिएगा, और आप जब क्राइसिस में होंगे तब आपको पता लगेगा ये व्यक्ति क्या है। मैं प्रोफेसर राजीव जायसवाल जी और डायनेमिक प्रिंसिपल, उनको भी बड़े थैंकफुल हूँ सर, आपने इतना अच्छा काम हमें करने दिए। और दीक्षांत जी को भी, और प्रमोद तिवारी साहब को भी। ही इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ अस एवरी टाइम, ही शोज हिज interest in every aspect, is a very good academician. And Nupur ji to hai bahut acha, but he is always part of the team. That's that. So we need to have a part of this team. ये आप लोग रखिए कि मैं ना टीम के पार्ट रहूंगा, क्योंकि टीम उसी दिशा में चल रहा है जहां डेवलपमेंट है। और ओपी शर्मा सर who is the main architect। मैं आप लोगों के और एक चीज बताऊं, उपेंद्र जी से बात हो रहा था, हम कमीशन ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग के साथ हमने कोलैबोरेट भी किए हैं सर, और आने वाले टाइम में हम उनके साथ बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे। मैं इन दोनों दिनों के लिए आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी ये आशा रखता हूं, और मैं अपने आप को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच। Thank you, sir, for your heartfelt vote of thanks. I now request everyone to please rise for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।